वो लास्ट तक देख के फिर एक छोटा सा टैप करता था और गली या उसमें से निकल जाती थी. It always went for a boundary. In our batch, Patel always used to be Sachin Tendulkar. I mean, he used to be Gavaskar, you know. That time we had Gavaskar. Yes. And yeah, that was. We are not live. We are just inside the group. Let me share the batch. Sir, okay. No, we are live. We are live on Facebook now. We are live on Facebook. Before we start, welcome everyone for this particular online webinar on COVID fight against COVID stigma. So we have some eminent personalities from Gujarat, and we're going to talk about these particular issues. I'm going to invite our moderator of the session, Mr. Pradeep Malik. He is a project head and center head of Center for Communication of Child Rights at PTP University, and he's also a professor there. So the basic format is that Pradeep Malik will be asking questions to each of the panelists, and then it will be open for discussion, and he will come one by one to all the panelists. And I would request all the attendees who are listening us, they can submit their question and answer. There's a tab, if they are observing on the Zoom, there's a tab called Q&A, where they can go and keep asking questions. And in the end, we are going to take questions from there. So please sharing that. And if you have any comment, any specific comment, please post in the chat box. So now I will hand over to Mr. Pradeep Malik to start the online webinar. And I'm also going to share the link of the Facebook to all the panelists. Pradeep, sir. Please sharing that. And if you have any comment, thank you, Manish. Thank you. And welcome to this key roundtable webinar. All my esteemed panelists and all the participants. Welcome to this webinar on COVID Tales, the media response to it and how media is responding. With me, let me have the privilege of introducing the eminent panelists that we have before we can start. So I'm Pradeep, as Manish told you. I'm Pradeep. I'm a professor at School of Liberal Studies at Pandit Deendayal Petroleum University. There we run the small center called Center for Communication of Child Rights, which Manish is the project coordinator. And we run this with generous support from UNICEF. They are a partner. So we have the UNICEF Gandhinagar office, Gujarat office chief, Dr. Lakshmi Bhavani with us. Dr. Lakshmi Bhavani has been heading the UNICEF Gujarat operations. She's an expert in nutrition, but as we all know, nutrition is a very important thing, aspect of raising children. And UNICEF is all about children and allied segments of society. Welcome, ma'am, Dr. Lakshmi Bhavani. We also have two very eminent personalities from the medical fraternity. Dr. Tejas Patel, I'll start with. Dr. Tejas Patel is a Padma awardee, a Padma Shri. Welcome, Dr. Patel. We all know he's a well-known interventional cardiologist, and he has a couple of patents on cardiology named Patel 1, Patel 2, right? Am I right? Yeah, so he has a couple of patents also. And he's also a member of the consultancy committee that the government of Gujarat has established to fight, to tackle COVID. So he's a member of that. Welcome, Dr. Patel. Welcome, Dr. Bhavani. Then we have a very eminent medical practitioner with us, Dr. Vineet Mishra. Dr. Vineet Mishra heads the Institute of Kidney Diseases and Research Center, IKDRC as it is known. I'm sure everyone knows that is also, this institute is also probably, am I right? Correct me if I'm wrong. This is the largest transplant institute in the country. Yes. They work in the transplantation of kidney and liver and pancreas, and pancreas. So, and you'll be very surprised. The audience, August audience, will be very pleasantly surprised to know
that they do lakhs of dialysis every year. Am I right, Dr. Yeah. Mr. Lakhs of dialysis? And the beauty is they are all free. You know, that is the beauty. So welcome, Dr. Mishra. Thank Then you. we have among our panelists, thank you, Dr. Mishra. We have among our panelists two very big names from the media fraternity. We have Mr. Nirnay Kapoor. And Nirnay Kapoor is the state chief of India TV, and he has been with India TV since almost since its launch. Am I right, Nirnay? Yeah, almost 2 decades. All 2 decades, almost since the launch of India Yeah, TV. yeah. A veteran, you must have seen him so many times on television. I have been watching him, how he has been reporting, and we'll talk more about it. Nirnay is currently the president of Gujarat Media Club, of which I am also a member. And so this event, as you all know, has been organized by Gujarat Media Club, Elixir Foundation, and Center for Communication of Children Rights in association with USAID and UNICEF. And in our panel, we also have a very big name from media industry, and that is Pranav Golwalkar. Pranav is currently the resident editor of Divya Bhaskar, and I'm very happy to share with the audience. Pranav is one of the founding members of Bhaskar in Gujarat, one of the earliest employees of Gujarat, of Divya Bhaskar in Gujarat. So he has been the resident editor in Baroda, he has been, and now he is in Ahmedabad. So welcome all of you. And dear participants, as Manish was telling us, that once we have heard from the panelists and we will have some interaction, you people can keep typing your questions in the Q&A box, any language. And I'll request our panelists also, please be free to speak in any language, because ये अभी right now Facebook live भी है, और हम चाहते हैं, sir and madam, हम चाहते हैं कि this talk should go to the, greater the number, the better it is. So if we have a mixture of English, Gujarati, Hindi, everything will be fine. But of course, you have to be comfortable with whichever language you are comfortable with, and especially Dr. Bhavani, मैं आपके लिए ये कह रहा हूँ कि please be free to speak whichever language you are comfortable with. I think you are more comfortable with English, but that's fine. We are absolutely fine. English, और फिर हम लोग थोड़ा सा combine करेंगे languages के. So as let me tell the audience very quickly. हमारा फॉर्मेट ऐसा है कि हम लोग पैनलिस्ट, एमिनेंट पैनलिस्ट से एक बार सुन लें उनके विचार, देन उस विचार में जो कुछ भी उभर कर आता है हम लोग थोड़ी सी बातें करेंगे उसके ऊपर. I will try to interact with them, and then you can we'll open the floor for the questions, for which again the communication of specialist from UNICEF, Mr. Ankush Singh, who is online with us, he'll be compiling all the questions, and then we'll put it before the panelists. I'm also, you can't see him on the screen, but I'm also happy to announce that the director of School of Liberal Studies, Pandit Dindayal Petroleum University, Professor Nigam Dave, he's also online with us. Welcome, sir. So let us get on with the discussion. This introduction took a little longer, but it was bound to take. We have such eminent panelists on the panel. So it was in the order that I introduced them properly. So हम लोग शुरू करेंगे. We'll like to start with Dr. Lakshmi Bhavani. Ma'am, if you can give your opening remarks for a few minutes before we switch over to other panelists. Thank you, Pradeep ji. And once again, a very good evening to everyone, and hope you all are safe. And I'm very happy to have the mix of the medical professionals and the media people. And before I start, I would like to thank Gujarat Media Club for coming forward and being part of this initiative to talk about the COVID stigma. And media has played a stellar role in updating the public in general about the COVID-19 and its impact on people's health. We are also thankful to the Center for Communication and Child Rights, DPU, and Elixir Foundation to be part of this initiative. I am aware that number of media professionals themselves got exposed to COVID-19 during their duty to report from the ground in Gujarat. And in fact, they risked their personal health while reporting, and there is no word which can suffice for their commitment. You have also been real COVID warriors along with the medical professionals.
else. Salute to all of you. I am happy to know that Mr. Pranav Golwekar, just now we have seen, he's the resident editor of Divya Bhaskar, and he is just recovered from COVID-19, is with us. So he is the most apt person to be talking on this issue. So to talking on this issue and sharing his perspective, what kind of experience he had. And in fact, I am also very eager to listen to Mr. Pranav's thoughts on it. And words do matter. While media reports our rights has immense influence on their readers and viewers, people do listen, watch, and read media platforms to keep themselves updated on COVID-19 pandemic. And in this context, we believe media has a large role to play to fight stigma and discrimination. Unfortunately, we have seen a rise in discrimination and stigma related to COVID-19. And the social stigma in the context of the health is the negative association between a person or group of people who share certain characteristics and a specific disease. In an outbreak, this may mean people are labeled, stereotyped, discriminated against, treated separately, and are experience loss of status because of perceived link with this disease. Such treatment can negatively affect those with the disease as well as their caregivers, family, friends, and communities. People who do not have the disease but share other characteristics with this group may also suffer from stigma. The current COVID-19 outbreak has provoked social stigma and discriminative behaviors against the people of certain ethnic backgrounds as well as anyone perceived to be in contact with this virus. What we have observed is that the level of stigma associated with COVID-19 is based on three main factors. It is the disease that's new and for which there are still many unknowns, and we are often afraid of the unknown, and it is also easy to associate that fear with others. And it is understandable that there is confusion, anxiety, and fear among the public. Unfortunately, these factors are also fueling harmful stereotypes. And stigma can undermine social cohesion and prompt possible social isolation of the groups, which might contribute to a situation where the virus is more than less likely to spread. This can result in more severe health problems and difficulties controlling a disease outbreak. We can hear more from the medical experts who are with us today. And this stigma can drive people to hide the illness to avoid the discrimination and prevent people from seeking healthcare immediately and discourage them from adopting healthy behaviors. These behaviors are ultimately, they lead to higher contact and spread of infections. And evidences clearly show that stigma and fear around the communicable diseases hamper the response. What works is building trust in reliable health services and advice, showing empathy with those affected, understanding the disease itself, and adopting effective practical measures so that people can help keep themselves and their loved ones safe. How we communicate about the COVID-19 is critical in supporting people to take effective actions to help combat the disease and also to avoid fueling fears and stigma. An environment needs to be created in which the disease and its impact can be discussed and addressed openly, honestly, and effectively. We may consider some tips on how to avoid compounding social stigma, as mentioned by WHO, as we all know. The first one I would like to say is the words matter. When we talk about the coronavirus disease, certain words such as suspect case, isolation, and also the language, which may have the negative meaning for people and fuel stigmatizing attitudes. These should be avoided. Otherwise, they can perpetuate existing negative stereotypes or assumptions, strengthen false associations between the disease and other factors, or create widespread fear or dehumanize those who have the disease. This can drive people away from getting screened, tested, and quarantined. We recommend people's first language that respects and empowers people in all communication channels, including the media. Words used in media are especially very important because these will shape the popular language and communication on the new coronavirus. Second thing, negative reporting, which has the potential to influence how people suspected to have new coronavirus, patients and their families, and affected communities are perceived and treated.
The third thing which I would like to mention is spreading the facts. Stigma can be heightened by insufficient knowledge about how the new coronavirus disease is transmitted and treated, and how to prevent the infection. In response, prioritize the collection, consolidation, and dissemination of accurate country and community or specific information about the affected areas, individuals and groups, vulnerability to COVID-19, treatment options, and where to access the health care and information. We have to use simple languages and avoid clinical terms. And to the extent possible, we have to use the local language, our dialects. And fourth one I would like to mention is we have to amplify the voices, the stories and images of the local people who have experienced the new coronavirus and have recovered, or who have supported a loved one through recovery, to emphasize that most people do recover from COVID-19. For example, amongst us, Mr. Pranav is there. He is a positive example for us. And the same way, we have several people who have public importance, had coronavirus. Madam, let me tell you, as there are eras, they say this is before Christ and after Christ. Yeah. The media was different before Pranav Bhai entered hospital and after he came out with something this thing. That was in corona management and in the media perception. I 100% agree. Pranav Bhai has played this thing. So I said that in 3 months of corona, the period is before Pranav Bhai came out of SVP and after he came out of SVP. This was the dividing line when he came out and told media that what the doctor fraternity is doing and how they are managing. Pranav Bhai, believe me, that has changed the perspective of the media. Absolutely, and everything goes to your communication with the fraternity. Madam. And in fact, we are going to hear him now. And another thing I would see, it is already a lot of ethnic groups have been associated with the COVID fear that we should not go to them, otherwise we may get, and these kinds of things. But now the perception is totally changed. Madam, what we felt, we had 202 beds allocated for COVID management as a super specialty hospital at Medicity. So Medicity had about 2,500 beds, 1,200 bed cancer, cardiology and kidney institute. There were two things which everybody feared. Absolutely. One was the C virus and the other was the F virus. And the F virus was bigger than the C virus. The fear virus, was. In fact, that is the last point I am going to say. The fear virus was 1,000 times more potent in the psyche of a patient who either had a C virus or was fearing to get C virus. So in fact, this is the last point I wanted to say, that you already mentioned. It is the fear factor. So it is very important that we share the facts and accurate information and prevent the fears, or we need to make an attempt to remove the fears that people are having. Yes. So finally, maybe I think it is for me to stop now. It is the time for me to stop now. So once again, I would like to thank all our panelists and participants who are watching this session. And also let us, as Dr. Vineet said, and everybody feels, let's join our hands to raise the voices against the COVID stigma. I'm sure together we'll be able to end any kind of stigma and discrimination that is persisting in the society. We count for all your support. Again, I thank all our partners for supporting this. Thank you, Pradeep ji. Thank you, Dr. Lakshmi Bhavani. Thank you very much. And thank you, Dr. Mishra. आपने थोड़ा सा इंटरवेंशन किया, थोड़ा और लाइवली बन गया, एंड आई होप कि और लाइवलियर होता जाएगा. तो मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट, चूंकि प्रणव भाई आपकी काफी बातें हो गई, फिर हम चाहेंगे कि टू हियर फ्रॉम, अगर मैं यूज कर सकूं, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे ये कहानी, एंड उसके बाद मैं आऊंगा निर्णय भाई के पास, क्योंकि वो भी काफी घूम रहे हैं इन लोगों के बीच में. And of course, the doctors who have been, at the forefront, leading
by example. But पहले सबसे पहले प्रणब भाई, मैं चाहूंगा आप हमें ये चलें एंड थोड़ी सी ये बात हमें बताएं, दो बातें, मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं वो तो कहेंगे ही, मैं चाहूंगा कि स्पेशल कुछ ऐसा करें कि जब आपको पता चला कि आप कोविड से संक्रमित हैं, then what was there in your mind and how did you overcome जो डॉक्टर विनीत मिश्रा ने कहा, the other virus, the F virus, the fear virus, the fear virus. So please प्रणब भाई. एक्चुअली मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि ऐसा था कि हम शुरू से उसको रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमको थोड़ा बहुत उसका अंदाजा था, लगातार हम उसके ऊपर थे, ऑफिस में से स्टाफ हटाया गया था, वर्क टू होम करने को बोला गया था। पर जब मुझे पहली बार वो लगा कि बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है और शायद वो रिकवर नहीं हो रही है, तो पहले तो मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, और चूंकि लगातार कांटेक्ट में थे, तो जब स्मेल चली गई और टेस्ट चला गया, तो आई वाज श्योर कि ये पॉजिटिव हो सकता है। अब देयर आर टू चॉइसेस कि घर पे रह के करें, पर वो हो नहीं पाया। फिर आई वेंट स्ट्रेट टू द एसवीपी हॉस्पिटल और मैं एडमिट हो गया। इंटरेस्टिंगली जब मैं एडमिट हुआ तब मेरे मन में भी काफी सारे डाउट थे, फियर भी था, ऑब्वियसली मैं निर्णय के लगातार कांटेक्ट में था और बातें कर रहा था, कुछ एक डॉक्टरों से भी बातें कर रहा था। पर जब मैं उस वार्ड में गया तब बिलीव मी आई वाज वेरी रिलैक्स, क्योंकि अब मुझे कुछ नहीं करना है, डॉक्टरों को जो करना है करना है। और 2.5 महीने तक जो मैंने मास्क पहन पे घूमा था, पहली बार आई फेल कि यहाँ स्वतंत्रता है मास्क बगैर। सबको तो पॉजिटिव था, अब वो मास्क पहन के घूमेंगे तो कितना घूमेंगे, 24 आवर्स थोड़ी घूमेंगे। एक बार बुलेट लग गई, फिर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के कितना घूमोगे। वो 10 दिन बिना मास्क के जो गुजारे वो आज भी मुझे याद है, सबसे बड़ी चीज थी। एवरीबडी वाज पॉजिटिव, सो था कि ये थोड़ा लाइटर वे में है, पर सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी मुझे वहां पे ही मिली, क्योंकि हर आदमी पॉजिटिव था वहां। कोई एक दूसरे को ज्यादा कोई सवाल तो करते थे नहीं, वैसे भी वो सांस में दिक्कत होती थी तो बोलना बहुत ज्यादा होता नहीं था। हार्डली एक आध क्वेश्चन पूछते थे कि कैसा, कब पॉजिटिव आए, बस इतना। और फिर हर एक आदमी एक दूसरे को हेल्प करता था, क्योंकि उस वार्ड में कोई अपने साथ कोई होता नहीं, क्योंकि कोरोना वार्ड होता है। बहुत ज्यादा लोग, वो डॉक्टर्स भी जब बुलाते हैं वो आते हैं, क्योंकि उनको भी एक फियर होता है कि हमेशा कि वो लग जाए ऐसा। हालांकि मैंने जो सर ने मेंशन किया, विनीत सर ने, तो मेरा एक्सपीरियंस डॉक्टरों के मामले में बहुत अच्छा रहा। मतलब जिस दिन वो 45 डिग्री गर्मी थी और मैंने उनको कहा कि एसी भी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि एसी से इन्फेक्शन लग सकता है, इसलिए हमने एसी बंद किया हुआ है। और फिर मैंने कहा कि यहाँ इतनी गर्मी सहन नहीं हो पा रही, तो उसने कहा कि हमारी हालत सोचो, पीपीई किट में हमारा क्या होता होगा। और उसके पूरे चेहरे पे इतना सारा पसीना होता, और वो आए हुए 10 मिनट हुए तो उसको 8 घंटे निकालने थे। एंड फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि किन कंडीशन में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, और हमारे लिए वो कभी भी बुलाओ, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि यहाँ आने। ऐसा नहीं है कि मैं रेसिडेंट एडिटर, दूसरे लोग भी वार्ड में बुलाते थे उनको, तो वो जाते थे, वो उनको अटेंड करते थे, वो बहुत अच्छी तरह से अटेंड करते थे। जो स्टिग्मा की बात है उसमें ऐसा था कि जो शुरू में मैंने देखा था, और एज ए मीडिया पर्सन मैंने वो ऑब्जर्व किया था कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। जो भी क्वारंटाइन में होते थे तो वहां पे कंप्लेन करते थे, उनको हेल्प नहीं मिलती थी। बल्कि हमने एक फोटो भी छापा था, एक लड़की जो क्वारंटाइन में है, और ऊपर लिखा था कि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, हूँ पण मानस छू, ऐसा व्यवहार मेरे से मत करो। बात है सोशल डिस्टेंसिंग की, शरीरों के बीच में अंतर होना चाहिए, मन के बीच में क्यों अंतर हो रहा है इतना सारा। और ये वायरस है, कोई ये अनटचेबिलिटी तो था नहीं ऐसा। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस उस मामले में अच्छा रहा। मुझे भी ऐसा था, जब मुझे कोरोना आया और घर पे वो स्टिकर विकर लगाए गए, तो मुझे लगा था कि आस पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे, बट दे वर क्वाइट हेल्पफुल फॉर्चुनेटली फॉर मी, कि वो मेरी वाइफ को उन्होंने कहा कि आप कहीं पे मत जाइए, हम जो कुछ भी लाना है वो आपको लाके देंगे, ये होगा वो होगा। सेइंग दिस, एक अनदर एक्सपीरियंस भी था कि जो मेरा एक परिचित था, उसको जब कोरोना हुआ तो उसके घर में वो पानी वाले को नहीं जाने दिया है। एक्चुअली बहुत सारी परेशानी हो गई, और मेरी एक रिपोर्टर को उसको चेयरमैन को बताना पड़ा कि हम पुलिस केस कर देंगे अगर इस तरह से बिहेवियर किया। तो मेरे ख्याल से वो
पैनिक उनके अंदर है, और दूसरा वो कई बार वो समझना भी नहीं चाहते कि किन चीजों से फैलता है या किन चीजों से नहीं फैलता है। तो उसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा पैनिक में चले जाते हैं और ओवर कॉशियस हो जाते हैं कि इसको बंद ये करो, वहां पे ये करो, वो करो। आई वाज शॉक्ड जब हमने वो खबरें छापी थी कि डेड बॉडी को वो अंतिम ये करने के लिए स्मशान में से भगा रहे हैं, पथराव कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर। मतलब ऐसी स्थिति कभी सोची नहीं जा सकती थी। ये खबरें छापी कि किसी फादर की डेथ हो गई और बच्चे डेड बॉडी लेने को तैयार नहीं। शायद मुझसे ज्यादा सर को पता होगा कि कई सारी डेड बॉडी सिविल में अनक्लेम रही और स्टाफ ने जाके उनकी अंतिम विधि की। तो दिस वाज एक्सट्रीमली शॉकिंग फॉर अस कि ये है। अब दो चीजें उसमें था कि लोगों में थोड़ा पैनिक मतलब होना जरूरी था, क्योंकि ये डर ना होता तो लोग कहीं से भी खुले घूमते और सब कोई इन्फेक्ट हो जाते। पर ये इतना ज्यादा मतलब वो उन्होंने इतना बढ़ा दिया उसको कि कुछ भी करो, मतलब कोरोना है तो कहीं से भी 1 किलोमीटर दूर से भी कोई कोरोना वाला आ गया तो उसके ऊपर इन्फेक्शन लग सकता है। ये बहुत ज्यादा हो गया था। और स्टिल वी हैव, मतलब मुझे वो उससे भी पेन बहुत था कि कैसे कर सकता है कोई अपने फादर की डेड बॉडी छोड़ सकता है, या अपने कोई जो अपना कुटुंब का कोई आदमी है उसकी डेड बॉडी भी लेने न जाए। जबकि ऐसा नहीं होता कि डेड बॉडी जब वो दी जाती है बिल्कुल पैक की जाती है, ठीक तरह से होता है, प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाता है, सब कुछ किया जाता है। तो वो ठीक था। उसके बाद का भी जो जो सर ने बोला वो थोड़ा सा, मैं सॉरी पर मीडिया धीरे धीरे उस लाइन पे चला जा रहा था कि क्योंकि वो अवेयरनेस पहले थी नहीं, तो वो धीरे धीरे सब अवेयरनेस आने भी लगी कि पहले इतने दिनों में, फिर बाद में, फिर 2 टेस्ट के बाद फिर नहीं फैलता है, कितने दिनों में नहीं फैलता। ये सारी जब खबरें आने लगी तो वो ज्यादा रिपोर्टिंग होने से एक पॉजिटिव एटमोस्फियर धीरे 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 क्रिएट होने लगा। और अब तो अगर जो मैं कहूं कि मैं उस एलिट क्लब का मेंबर हूं जहां अमिताभ बच्चन है, कुछ आर्मी वाले हैं, कुछ रिलीजियस बड़े बड़े लीडर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, तो आई डोंट फील शेम एट ऑल। मैं महानायक की क्लब में हूं, तो अब मेरे को क्या स्टिग्मा और किसको स्टिग्मा होना चाहिए। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से, मेरा देखने का तरीका अलग था। तो मैं वहां था तो भी मैं कुछ ना कुछ लिखता रहता था वो लाइट वेट में कि अपने आप को एक एंगेज करने के लिए। तो ये है मेरा ऐसा मानना है कि अब धीरे धीरे कम हो रहा है, और गांवों में अभी भी है, शायद जो रूरल एरिया में है वहां अभी भी स्थिति थोड़ी सी खराब है, पर सिटीज में काफी सारा इंप्रूवमेंट हो रहा है, पर स्लो है, पर हो रहा है। विल कम टू यू प्रणब भाई। आप जो कह रहे थे कि आप कुछ कुछ लिख रहे थे जब हॉस्पिटल में थे, मैंने सुना है आपकी कोरोना डायरी के बारे में, हम चाहेंगे कि आई विल कम बैक टू यू, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ी बात करें। आपने बहुत अच्छा कहा कि जब हाउ डिड यू गेट टू नो कि आपको कोरोना हो गया है, कोविड ने आपके ऊपर अटैक हो गया है, टेस्ट चला गया, स्मेल चला गया। तो ये थिंक एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स की हमें सलाम करना चाहिए जो उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया कि खुद से भी कुछ कुछ आप जान सकते हैं कि आपकी स्थिति कैसी है, एक। और दूसरा कि कैसे मीडिया ने भी ये आम लोगों तक पहुंचाया। आप तो खुद जरिया थे, आप तो मीडिया ही थे, आप ही ये बात लोगों को बता रहे थे थ्रू विद द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट्स। लेकिन आपने और आप में मीन्स आपके फ्रैटर्निटी के लोगों ने आम जनता, आम लोगों तक ये बातें पहुंचाई कि कैसे थोड़ी सी अवेयरनेस है। हैट्स ऑफ टू द जो फोरफ्रंट पे हैं, डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ एंड ऑल्सो द मीडिया पर्सन्स जो कि इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। सो विल कम बैक टू यू। हम चाहेंगे एक और मीडिया पर्सपेक्टिव सुन लें बिफोर आई कम टू डॉक्टर पटेल एंड डॉक्टर मिश्रा। ये पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दिस ऑगस्ट ऑडियंस को बताना चाहूँगा। Second person whom I'm inviting is Nirnay Kapoor, and the similarity between Nirnay and Pranab bhai दोनों में ये है कि luckily I mean journalist हैं ही ये लोग, but they are all trained journalists। ये लोग पहले 2 साल 4 साल इन्होंने ट्रेनिंग ली है, academic training ली है before they became practicing journalists। Both of them have the background of what we call कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट या डेवलपमेंट कम्युनिकेशन भी कई लोग बोलते हैं, या आजकल उसको कहा जा रहा है कम्युनिकेशन फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज। सो बोथ ऑफ देम हैव दैट बैकग्राउंड। निर्णय इज फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हुआ करता था यूनिवर्सिटी में। सो निर्णय इज फ्रॉम देयर। निर्णय हैज बीन मूविंग अराउंड among the patients,
among common people and has been interacting with lots of experts. तो निर्णय में आपसे सुनना चाहूँगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है. आपने लोगों से बहुत सारी बातें करी हैं, आपने बहुत लोगों के इंटरव्यूज दिखाए हैं टेलीविजन पे लोगों को, एंड कुछ कुछ बातें जो आप टेलीविजन पे भी पॉइंट आउट कर देते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए. तो मैं चाहूँगा कि आप हमें वो बताएं, हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस, और ये अवेयरनेस कैसे आप लोग फैला रहे हैं, एंड कैसे स्पेशली टेलीविजन, ऑडियो विजुअल मीडियम, कैसे ये जो टैबू है उस टैबू को कैसे शहरी एरिया में एज वेल एज रूरल एरियाज में कैसे ये दूर कर रही है, एंड और क्या किया जा सकता है. निर्णय भाई. सबसे पहले आप सब लोगों का धन्यवाद. मैं अपनी बात शुरू करता हूँ. एक छोटा सा फैक्ट पहले आपके सामने नरेट कर दूं. 19 मार्च को पहला कोरोना पॉजिटिव केस आया गुजरात में, और मैं इतना घूमने के बाद ये दावे से कह सकता हूँ कि 19 मार्च के बाद हम सब लोग अनटचेबल हो गए हैं. माहौल इस तरह का बन गया है. तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या एक्सटेंट है इस वक्त भ्रांतियों का, जो कि अभी भी उसी प्रकार से बनी हुई हैं हमारी सोसाइटी में. डॉक्टर्स इतना प्रयास कर रहे हैं, मीडिया की तरफ से भी काफ़ी हद तक प्रयास हो रहे हैं. मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूँ. अभी जब हम इस डिस्कशन में बातचीत कर रहे हैं, उस दौरान मुझे मेरे एक मित्र का SMS आया व्हाट्सएप पे बड़ौदा से, जिसमें वो लिख रहा है, आप सुनिए लैंग्वेज क्या है, और इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का फियर है, और फिर हम देखेंगे कि क्यों है ये फियर. वो ये लिख रहा है, द मोस्ट टेंस 7 hours ऑफ माई लाइफ हैव फाइनली कम टू एन एंड, कोरोना टेस्ट नेगेटिव, बैक टू वर्क. अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब एक व्यक्ति अपना कोरोना टेस्ट करवाने जाता है, वो किस प्रकार की साइकी से गुजर रहा है, किस प्रकार का मनोमंथन चल रहा है उसके मन में. और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो अपने आसपास जो कुछ देख रहा है, अपनी सोसाइटी में, जिस मार्केट प्लेस में वो जाता है, जिस जगह वो काम करता है, वहाँ जो लोगों का एटीट्यूड वो देख रहा है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के प्रति, उसकी वजह से ये फियर उसके मन में आ रहा है. ज़्यादातर मैं क्योंकि देख रहा हूँ इतने महीनों से, पहली बार मैंने ये देखा है कि लोगों का एटीट्यूड अचानक बदल जाता है. जैसे ही पता चलता है कि फला व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, आप तुरंत उसे ऐसे ट्रीट करने लगते हैं जैसे वो अनटचेबल है. वो अगर मान लीजिए आपके करीब आ गया तो आपको फिनिश कर देगा, आप मर जाएंगे. और बात किस तरह करते हैं, अरे दूर रहो दूर रहो. ये दिस इज नॉट द एटीट्यूड. ये डिजर्व नहीं करता है वो व्यक्ति जिससे आप इस तरह से कह रहे हैं. मैं आपको बताऊं कि जब लॉकडाउन का पीरियड खत्म हुआ, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूँगा. जब लॉकडाउन का पीरियड खत्म होता है, उसके बाद ओपन अप हो रहा है सोसाइटी, सरकार बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परमिशन दे रही है शुरू होने की. उस दौरान मैं देख रहा हूँ सोसाइटीज़ में जो डोमेस्टिक हेल्प के लिए काम करने वाले लोग आते हैं, उनका विरोध हो रहा है सोसाइटी में, बेवजह विरोध हो रहा है. क्यों? क्योंकि काम वाला कोरोना अपने साथ ले आएगा. हमने कोरोना को एक ऐसा भूत बना दिया, ऐसा हुआ बना दिया है कि मानो वो जैसे ही, मतलब हर दूसरा व्यक्ति, एक जो मैं फील कर रहा हूँ लोगों के बिहेवियर में बात, वो ये है कि हर आदमी ये सोचता है कि अपने अलावा किसी और पे विश्वास ही ना करूं, किसी भी चीज पे विश्वास ना करूं. बस मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, बाकी दुनिया जो है वो सब अफेक्टेड है, और वो इस हद तक अफेक्टेड है कि वो मेरा जीना मुश्किल कर देगा. और इसी वजह से हम इतना ज़्यादा स्केप्टिक होते जा रहे हैं. और बीइंग अ मीडिया पर्सन, मुझे ये एडमिट करने में कोई आपत्ति भी नहीं है. मैं बहुत फ्रैंकली ये चीज़ एडमिट कर रहा हूँ कि शुरुआत में, आई थिंक प्रणव भाई मेरे से एग्री भी करेंगे इस बात को, शुरुआत में मीडिया ने भी इस बात को समझने में और इस बात को प्रोपोगेट करने में काफ़ी देरी की है. क्योंकि हम लोग सिर्फ टेस्ट की डिबेट में ही उलझे रह गए अभी तक. अभी भी मैं देख रहा हूँ, टेस्ट कर लो या टेस्ट नहीं हो रहे हैं, या टेस्ट ज़्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा. जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा लोगों को आप हेट करना शुरू कर देंगे. जिस तरह का एटीट्यूड मैं देख रहा हूँ, लोग क्यों पॉजिटिव टेस्ट होने से घबरा रहे हैं? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मेरे आसपास वाला मुझसे बात करना ही बंद कर देगा. इस मामले में अपनी सोसाइटी जहाँ मैं रहता हूँ उसका एक एग्जांपल देता हूँ. हमारा ही एक काउंटर पार्ट है, दूसरे एक संस्था में काम करता है. वो लड़का पॉजिटिव आया, मैंने उसका एटीट्यूड देखा, और मुझे खैर ये कहते हुए बड़ी खुशी भी हो रही है कि अपनी सोसाइटी में लोगों का एटीट्यूड देखा. अगर इस तरह के प्रेसिडेंट्स हर जगह सेट हों तो शायद लोगों के अंदर और ओपननेस आएगी.
हमारी सोसाइटी में एक व्यक्ति पॉजिटिव आता है आज से करीब महीना 40 दिन पहले, और मुझे उस बंदे का एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा। उसने खुद अनाउंस किया सोसाइटी में कि आई हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव, और उसने बकायदा सोसाइटी के मैनेजमेंट को बताया कि आप प्लीज सोसाइटी में नोटिस लगा दीजिए कि मैं पॉजिटिव हूँ बट होम आइसोलेशन में हूँ एंड आई नीड योर कोऑपरेशन। और उसके बाद फिर कॉर्पोरेशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सब पूरे हुए, और बकायदा मैं इनफैक्ट उसके पड़ोसियों को सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा उसके प्रति रिस्पॉन्स दिखाया। जब सामने से उसने बताया, सोसाइटी का भी उसके प्रति एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड था। वो इसलिए क्योंकि सोसाइटी में उसको लेकर के एक बड़ी हेल्दी चर्चा हुई कि भाई ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, कि हम कभी भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जो जर्नलिस्ट हैं हमारे जैसे, मैंने उनका भी एक एटीट्यूड देखा है कि वो पता नहीं क्यों एक ये फीलिंग मुझे हमेशा आती है कि हम हमेशा दूसरों को कन्विंस करने पे लगे रहते हैं। हमारा काम लोगों को कन्विंस करना नहीं है, हमारा काम लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, हमारा काम लोगों को अवेयर करना है कि भाई ये सिचुएशन है, इसमें हम कैसे एक्ट कर सकते हैं। रादर क्या होता है कि हम जब आप मुझे बताइए, जो जर्नलिस्ट हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर से इंटरेक्ट करना चाहिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उन ऑफिशियल से इंटरेक्ट करना चाहिए जो इस समस्या को डील कर रहे हैं। हम वो नहीं करते हैं, हम सही पर्सपेक्टिव लेने की कोशिश नहीं करते हैं, और होता क्या है एट द एंड में आप देखिए हमारे जर्नलिस्ट के सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह, उसमें वो लगातार सिर्फ एक ही डिबेट में उलझे हुए हैं। पिछले 4 महीनों से हम लोग खुद क्यों कोशिश नहीं करते हैं कि लोगों में इस बीमारी के बारे में कुछ सही फैक्ट्स बताएं, उन्हें कोई सही जानकारी उन तक शेयर करें। क्योंकि देखिए, जितना जानकारी का अभाव रहेगा उतना ज़्यादा भ्रांतियां जो हैं वो घर करती जाएंगी। और उसका प्रणव भाई ने कुछ थोड़ा सा मेंशन किया, मैं आपको फैक्ट्स के साथ बता सकता हूँ। जब मैंने ये स्टोरी की, मैं लिटरली उस दिन पूरे दिन अपने आप सोचता रहा कि सोसाइटी का स्तर किस लेवल पे आ गया है। सिविल हॉस्पिटल में, मेडिसिटी में मैं गया था स्टोरी करने, और वहाँ मुझे पता चला कि कोविड हॉस्पिटल जो है 1200 बेड का, वहाँ 17 डेड बॉडीज अनक्लेम्ड थी, और किडनी हॉस्पिटल में जो कोविड सेंटर चल रहा था वहाँ पे करीब 5 या 6 डेड बॉडीज अनक्लेम्ड थी। और जब पता किया उन डेड बॉडीज के बारे में कि भाई क्या बैकग्राउंड है, तो पता चला इनके रिलेटिव्स ने फोन बंद कर दी, वो फोन तक रिसीव करने को तैयार नहीं है। और एक लेडी ने तो ये कहा कि अगर मेरा पति नेगेटिव है तो बताओ, मैं शमशान घाट पहुंच जाऊंगी, पॉजिटिव है तो आप लोग खुद ही कर दो जी इसका अंतिम संस्कार। और मैं आपको बताऊं, हम लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं अपने अथॉरिटीज को, मेडिकल सिस्टम में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको, पता नहीं हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन रखते हैं उनसे। बट यहाँ पे आप देखिए, मैं नाम के साथ बताना चाहूँगा, सिविल हॉस्पिटल में, कोविड हॉस्पिटल में एक जैमिन बारोट है सैनिटरी डिपार्टमेंट में, और किडनी हॉस्पिटल में प्रकाश नाम का शायद लड़का है। इन दोनों ने उन डेड बॉडीज को क्रिमेट किया है। 24 डेड बॉडीज को इन दोनों कर्मचारियों ने डिबेट किया है, और हमारे में से कोई ऐसा नहीं है जिसने उसके बारे में कुछ लिखा हो या उनके बारे में कोई 4 अच्छे शब्द लिखे हो, ताकि लोगों को पता चले कि हम किस लेवल पे जा रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा अखबारों में ही, एक पति ने अपनी पत्नी और बच्चों को कोविड के सस्पिशन में घर से निकाल दिया। बॉम्बे के अंदर एक खबर में पढ़ रहा था विच वॉज वेरी पैथेटिक। सुन के आपको पीड़ा होगी। एक लेडी ने बच्चे को जन्म दिया एंड शी टेस्टेड पॉजिटिव, उसकी फैमिली ने बच्चे और लेडी दोनों को डिसोन कर दिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि किस लेवल पे हम, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम कोरोना को एक अभिशाप मान रहे हैं। कोरोना अभिशाप नहीं है, कोरोना एक सामान्य सी बीमारी है जो शायद किसी को भी हो सकती है, जो कोई कास्ट, क्रीड, किसी का क्लास नहीं देख रही है। लेकिन हो क्या रहा है कि हम, और सबसे मजे की बात क्या है, देखिए विरोधाभास क्या है कि हम जो मेजर्स लेने को हमको कहे जाते हैं, जो प्रिकॉशंस लेने को कहा जाता है, उसके प्रति हम बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। आज की तारीख में भी आप देख लीजिए, हम इस तरह से बहादुर बन के घूम रहे हैं जैसे कि कोरोना नाम की बीमारी है ही नहीं। उससे बचाव का कोई उपाय नहीं कर रहे हैं, बचाव के उपाय तो सरकार करेगी। मैं आपको बताऊं, मुझे एक ऐसी फीलिंग आती है जब मैं यहाँ पे लोगों से बात करता हूँ, उन्हें चाहिए डॉक्टर उनके दरवाजे पे खड़ा हुआ मिले जैसे ही वो फोन करें। लेकिन अगर उनसे ये कहा जाता है कि भैया आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप मास्क पहन के घूमिए, आप पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं तो दो गज की दूरी से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा आपको सोशल डिस्टेंसिंग के और भी पैरामीटर्स हैं, आपको चीजें नहीं छूनी है, आपको अननेसेसरी थूकना नहीं है कहीं पे, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। और मजे की बात देखिए, जो लोग कोविड पेशेंट को
डांट के भगा देते हैं, वो किसी को जब थूकते हुए देखते हैं तब नहीं बोलते, तब वही एटीट्यूड होता है कि मेरे से क्या मतलब है इसका। लेकिन जिसको एम्पैथी चाहिए उसे एम्पैथी नहीं दे रहे हैं, जिसके सामने विरोध करना है उसके सामने विरोध नहीं कर रहे हैं। वी आर मतलब बड़े कंफ्यूज टाइप ऑफ हम ह्यूमन बीइंग हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये सारा जो कंफ्यूजन है वो अल्टीमेटली स्टिग्मा का फॉर्म ले लेता है, क्योंकि अवेयरनेस कम है। मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इट वुड बी अ वेरी गुड स्टोरी फॉर प्रणव भाई, प्रिंट वालों के लिए बहुत अच्छी स्टोरी हो सकती है। आप जरा पुलिस डिपार्टमेंट में चेक कीजिए, गुजरात में ड्यूरिंग लॉकडाउन वायलेशन के 2 लाख से ज्यादा केसेस दर्ज किए हैं पुलिस ने, 2 लाख से ज्यादा केसेस लॉकडाउन वायलेशन के। लेकिन जब आप उसको कंपेयर करेंगे 100 नंबर पे जो कॉल्स आते हैं, क्योंकि मैंने अनऑफिशियली बात की इसलिए मैं उस फिगर्स को भी कोट नहीं कर सकता, 100 नंबर पे जो कॉल आ रहे हैं पिछले 3 महीनों में, उसमें ज्यादा से ज्यादा कॉल इसी बात के आ रहे हैं कि कोरोना से आने सोसाइटी में घुसवा ना दो और हमारी सोसाइटी में काम वाला आवे छे। सो यू कैन मेक आउट, लोग 100 नंबर पे फोन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से हमको दूर रखो, डॉक्टर्स पे अटैक कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, सूरत का केस बड़ा पॉपुलर हुआ था, लोगों के ध्यान पे भी आया, हर जगह ये प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स को लोग इल ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि वो कोरोना पेशेंट्स का जाके इलाज कर रहे हैं, और उनको क्या कहते हैं कि आप आके कोरोना फैला दोगे सोसाइटी में। सोचिए, जो व्यक्ति अपना सब कुछ परवाह किए बिना हॉस्पिटल्स में जाता है, काम करता है, और मैंने खुद उन वार्ड्स में से रिपोर्टिंग किया, मुझे मालूम है इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप 4 घंटे पीपी सूट पहन करके आप खाली हॉस्पिटल में 2 दिन घूम के आइए, तब पता चलेगा कि कितना लीटर पसीना उनकी बॉडी में से निकल जाता है, कितना उनको अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए पता नहीं क्या क्या एफर्ट्स करने होंगे। और सबसे बड़ी बात, वो एक ऐसे जोन में काम कर रहे हैं जहां वायरल लोड सबसे ज्यादा है, जहां उन्हें पता है कि हर पल खतरा है, उनकी एक चूक उन्हें प्रोन कर सकती है। दे आर हाईली प्रोन टू कोरोना डिसीज। फिगर्स खुद बता रहे हैं, 1308 डॉक्टर्स अफेक्ट हुए हैं पूरे देश में, और जिसमें से करीब 100 या 102 डॉक्टर्स अपनी जान गंवा चुके हैं इस बीमारी के इलाज में, और हम उनकी भी कदर नहीं कर पा रहे। मतलब आप देखिए स्टिग्मा का एक्सटेंट कितना ज्यादा होगा कि हम उन डॉक्टर्स तक को जो उनका ड्यू मिलना चाहिए वो नहीं उन्हें दे पा रहे हैं। तो निर्णय भाई, मैं आपके पास और प्रणव भाई के पास आऊंगा फिर से। ये स्टिग्मा को कैसे दूर किया जा सकता है, क्या क्या कम्युनिकेशन की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? बिकॉज आप तो पत्रकार हैं ही, plus you also have this background of development communication, and I'll also come back to Dr. Lakshmi Bhavani to talk about this, how to talk about this stigma. Sorry to interrupt you Nirnay bhai, हम चाहेंगे कि हम लोग ये हमारे बीच में जो 2 बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं उन लोगों से भी हम लोग थोड़ी सुन लें, and then we can discuss among ourselves. Am I right Nirnay bhai? बिल्कुल बिल्कुल, और आपको सुनना चाहिए बिकॉज इन्होंने फोर फ्रंट पे रह के हैंडल किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हैं जो हम लोग सुन रहे थे और देख रहे हैं। कहते हैं कि अगर जिन लोगों को भगवान में विश्वास है, मैं उन लोगों के हिसाब से कह रहा हूँ कि किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन अगर कहीं देखना हो भगवान तो अपने पेरेंट्स में देखिए, बड़े बुजुर्गों में देखिए, परिवार में आसपास में देखिए, और कहीं बाहर देखना है तो उन लोगों को देखिए जो सफेद कपड़ा पहनकर जान हथेली पे रखकर लोगों के बीच काम कर रहे हैं। दीज आर द डॉक्टर्स एंड देयर सपोर्ट स्टाफ। सो हम चाहेंगे कि ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे प्रदीप भाई कि लॉकडाउन में तो भगवान भी मंदिर में लॉक हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, सफेद कोट के ये फरिश्ते जो हैं ये ट्रीट कर रहे थे लोगों की सेवा में जुटे हुए। लोग यही कह रहे हैं कि मंदिर इसीलिए बंद है क्योंकि भगवान तो सफेद कोट पहनकर हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। इसलिए अगर देखना है तो हॉस्पिटल जाइए, उनको देखिए, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है कहने की बात है। तो उसमें मैं चाहूंगा कि दोनों बड़े दिग्गज हैं, बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने फील्ड से, और दोनों इस क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। तो कैन आई इनवाइट डॉक्टर विनीत मिश्रा? निर्णय भाई ने ऑलरेडी पॉइंट आउट किया है कैसे डॉक्टर न केवल ट्रीट कर रहे हैं बट फैमिली वालों से भी कैसे डील कर रहे हैं। बॉडी जो अनक्लेम्ड रह जाती है, बड़े बेबाक शब्दों में निर्णय ने हम लोगों को बातें बताई। एज यूजुअल वो बहुत ही आउटस्पोकन है एंड नाउ ऑल्सो, बट कैसे परिवार वाले जिन्हें छोड़ चुके हैं उनको डॉक्टर मिश्रा और उनकी टीम, डॉक्टर तेजस पटेल और उनकी टीम, और उनके जैसे उनके जो कलीग्स हैं, इनके
फ्रैटर्निटी के लोग हैं, कैसे उनके साथ डील कर रहे हैं? डॉक्टर मिश्रा, वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू. Good evening, namaskar everybody. Pranav ji, Lakshmi madam, my friend Nirnay, my friend Tejas, Pradeep ji. We are Kidney Institute. हम लोग मेडिसिटी में जो कैंपस है उसमें 1200 बेड was converted into कोविड हॉस्पिटल. दैट वो जो 1200 बेड की फैसिलिटी थी वो बेसिकली तो सुपर स्पेशलिटी गायनेकोलॉजी पीडियाट्रिक्स और उसके लिए थी. तो दैट वाज कन्वर्टेड टू कोविड हॉस्पिटल. कैंसर प्लेस्ड अबाउट 250 बेड्स. हम लोगों ने 200 बेड, कार्डियोलॉजी ने करीब 300 बेड प्लेज किए. अब कोविड आया और nobody knew what COVID is. Nobody knew. जैसे प्रणव जी ने कहा कि वो it became untouchable. मैं उससे थोड़ा सा आगे जाता हूँ. अनटचेबल की बिरादरी में तो एक दूसरे को टच करते हैं ना. जब अपनी बिरादरी से बाहर निकल के जाते हैं then they become untouchable. यहाँ तो जिन लोगों के साथ हम लोग रोज उठते बैठते, पेशेंट्स आते थे, सबको हम लोग सब ट्रीट करते थे. they all started considering doctors, staff. इतना भय का वातावरण. servants, doctors, nursing staff, when they went up, they started treating. पीपी सूट किसी ने नहीं पहना था. जब पीपी सूट पहन के अंदर गए और ऐसा कहा कि आपको 8 घंटे रहना है, पीपल यूज्ड टू फेंट. अब वो फेंट होने का कारण, वी हैव एन एमिनेंट कार्डियोलॉजिस्ट, वो इतनी गर्मी लगती थी कि वो हाइपोवॉलेमिक शॉक में जाते थे. पसीना इतना होता था. गमबूट्स देते थे जिसके अंदर से 1.5 लीटर पसीना निकलता था. So we started hydrating them कि 2 लीटर पानी पियो. Then we found that 6 hours, 4 hours PP किट पहनने के बाद आप वापस से डॉफिंग करके एरिया में बैठिए, खाइए, पिए, नहाइए, and then redo the things. Let me tell you, शायद अगर इतने जो सोशल मीडिया है, सारा मीडिया है, मानो कि अगर वो नहीं होता और कोविड आता, बराबर है, सिर्फ मानो प्रणव भाई का ही मीडिया होता, दैट इज प्रिंट मीडिया, और कोविड आता तो क्या परिस्थिति होती? परिस्थिति थोड़ी सी अलग होती. बराबर है सर. द अमाउंट ऑफ पब्लिसिटी, द अमाउंट ऑफ थिंग्स, अच्छी बुरी सारी चीजें जाने लगी. सडनली इट वॉज रियलाइज्ड, एंड at least in Gujarat, what we found, government was so much worried. The entire system was here. Whatever was asked, it was given. No questions asked. कभी किसी ने पूछा नहीं कि क्यों ये चाहिए, आपको चाहिए, पेशेंट की ट्रीटमेंट में चाहिए, लीजिए. It was like opening up of the finance department, and anybody wanted anything for treatment of COVID, it was available and is still available. प्रणव भाई, जो मैं कहता था ना, जैसे लक्ष्मी मैडम ने कहा और उस टाइम मैंने एक मजाक किया था कि जो एरा प्रिंट मीडिया का व्यू बिफोर प्रणव भाई बिकेम कोविड पॉजिटिव एंड आफ्टर ही गॉट ट्रीटेड एंड ही केम बैक एंड ही एड्रेस्ड, उन्होंने जब अपनी फैटर्निटी को और सबको बताया कि कैसे लोग काम करते हैं, कितना अच्छा है, और the media fraternity said that such a senior respected person जो कोविड पॉजिटिव हुए थे वो अच्छी तरह से बाहर आए और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस कहा. प्रणव जी, बिलीव मी, दिस इज नॉट एन एक्सैगरेशन. योर कमिंग टू द मीडिया, टॉकिंग टू दिस थिंग, इसके अंदर द पर्सपेक्टिव, द एटीट्यूड चेंज्ड. जो फियर का जो कॉम्प्लेक्स था,
फियर रिपोर्टिंग का जो कॉम्प्लेक्स था वो मीडिया ने तुरंत ही चेंज कर दिया और बहुत अच्छी तरह से एवरीथिंग स्टार्टेड हैपनिंग वेरी गुड एंड every credit goes to you. With Nirnay Bhai, we had relationship that at least 7 days in a week he will be in media Medicity campus and we used to interact and then we used to have stories. जो कोविड है, जो स्टेट ने एक्सपीरियंस किया लास्ट 2-2.5-3 महीने में, कोविड चला नहीं गया है, कोविड चला नहीं गया है, ये है, इट इज स्टिल देयर, बट द बेस्ट थिंग इज एवरीवन हैज स्टार्टेड लर्निंग, एक्सेप्टिंग टू लिव विद इट. बट अनफॉर्चुनेटली जितनी एक्सरसाइज गवर्नमेंट ने सबने करके लॉकडाउन किया, सब किया, जिससे कोविड के केसेस कम आ रहे थे, दी सडन रश जो था वो इतना नहीं हुआ, फैसिलिटीज बहुत अच्छी हुई. इसके अंदर जो हम लोगों ने फर्स्ट मंथ में एक्सपीरियंस किया कि जो कोविड के लिए जो मॉर्बिडिटी यानी जो बीमारी और जो ये है बीमारी और उसके लिए जो भी डेबिलिटेशन होता है, शारीरिक और मानसिक डिफिकल्टी होती है, वो मॉर्बिडिटी, वो मॉर्बिडिटी में फियर कंपोनेंट वाज सो ह्यूज. जब सब लोग कहते थे व्हाई कांट वी हैव कोविड टेस्ट फॉर एवरीबडी. लेट अस इमेजिन कि अपने प्रांत में वी आर 7 करोड़ पीपल एंड वन डे all 7 crores were tested. तो क्या होगा पता है? प्रदीप जी नेगेटिव हैं, प्रणव जी पॉजिटिव हैं, निर्णय जी नेगेटिव हैं, मैं, मैडम और तेजस वी आर पॉजिटिव. तो प्रदीप जी और निर्णय जी हम लोगों को अछूत मान के भाग जाएंगे और बात भी नहीं करेंगे. It would have created a situation of civil war. It would have created a situation of civil war. That was controlled and slowly it started happening. How does Corona do? वो सारी चीजें तो तेजस बोलेगा because that is his, forte, But let me quote you 4-5 examples. जो निर्णय भाई ने कहा कि people did not come to claim the body. Can you imagine what fear they had? जो उन्होंने निर्णय ने कहा कि एक हस्बैंड डाइड, वी हैड कंट्रोल रूम, सबके मोबाइल नंबर्स थे, सब था, वी कॉन्टेक्टेड हिज वाइफ एंड कहा कि योर हस्बैंड इज नो मोर. तो बोला इसका रिपोर्ट क्या है? तो बोला मैडम आ तो छे ने कोरोना पॉजिटिव હતા. તો કે મારે તમે તમારે એની વિધિ કરી નાખવાની. कैन यू इमेजिन? नो. और वो ऐसा न्यूली मैरिड नहीं थे, वो करीब 55-60 साल के थे. मतलब तो क्या, कम से कम 30 साल 35 साल तो शादी के हुए होंगे ना, और उनसे उनके बच्चे भी थे. मतलब द फियर वाज सो ह्यूज दैट नो, अनएक्सेप्टेबल. बट जैसे मैंने कहा ना, ये सारी चीजें, ये फियर फैक्टर पोस्ट प्रणव भाई, जब प्रिंट मीडिया, देन निर्णय कपूर एंड द अदर what you call the digital media, they started telling कि भाई कोरोना किसी को भी हो सकता है, ट्रीटेबल है, जल्दी जाओ. These fear factors started coming down. The initial morbidity and mortality was very high because number one of fear virus which they had. Second thing is unfortunately अपने यहाँ की population है ना, उन्होंने कभी अपने शरीर पे ध्यान ही नहीं दिया. So they were all comorbids. डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, 500 डायबिटीज હોય તો કે ચાલે ને, એમાં શું વાંધો છે? બરોબર છે ને? બ્લડ પ્રેશર है,
मेडिसिन भूल गए, सब कुछ है, they were the ones who got severely beaten up. And comorbidity, Tejas will agree, was a major cause of death which was happening. If we अगर अपने उसको रिमूव करें, कोरोना पर से का डेथ एंड कोरोना इन्फेक्टेड कोमॉर्बिड पेशेंट के अंदर, तो कोमॉर्बिडिटी वाज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ इन एन इन्फेक्टेड पेशेंट विथ कोरोना. कोरोना का फियर आज भी है. इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जब हम लोग अहमदाबाद के अंदर देखते हैं, लॉकडाउन था तो नोबडी वाज देयर. आप लोग कह के सब लोग थक गए कि मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग करो. आज भी मैं तो नारायणपुरा रहता हूँ, शाक भाजी की लारी पे स्टिल वी हैव कार पार्क फीमेल्स, मेल कमिंग टू हैव शाक भाजी, और वो ऐसे टूट रहे हैं जैसे उन्होंने कभी शाक भाजी देखी नहीं है और अभी खत्म हो जाएगी. एंड दे विल प्रोबेबली, अगर वो नहीं मिलेगी तो दे आर गोइंग टू डाई आउट. Then I stop my car and say कि थोड़ा तो दूर रहो, पढ़े लिखे हो, कार में आए हो तो मतलब पैसे वाले हो, कम से कम दूर तो रहो. They look at you as if you know ये मतलब बाबा जी आ गया है और सबको सलाह दे रहा है. But believe me, Corona is still not over. It's still not over. It is coming as wave. अहमदाबाद में जो था तूफान था, कम हो गया है, पर अभी भी है केस. अभी सूरत में आ रहा है. सूरत इज बैडली गेटिंग बीटन अप. स्लोली डिफरेंट सिटीज में आएगा. एंड जिस तरह से लॉकडाउन ओपन अप होने से जो लोग अभी भी बेखौफ होके घूम रहे हैं, है ना, एज इफ नथिंग हैज हैपेंड. दे वेयर मास्क एंड they wear it till here. You know, they wear it till here. ऐसे सर तुम यहाँ तक मास्क क्यों पहनते? तो बोले मास्क तो પહેર્યું છે ને. એટલે મેં કીધું તમે માસ્ક બે માટે પહેરો છો. એક તો તમારા ઘરમાંથી તમારા મધર કે તમારા વાઈફે કે તમારા બાળકે કીધું હશે કે ભાઈ માસ્ક પહેરીને જાઓ એટલે માસ્ક પહેરી લીધું. બીજું છે કે તમને બીક છે 200 रुपया અથવા હવે 500 रुपयाની, बराबर है ना, 500 रुपया की डर है इसलिए यार ऊपर कर दो, है ना. वो लोग समझ नहीं रहे हैं. इवन इन अहमदाबाद जो अपने लिटरेट मानते हैं, इससे अच्छा गांव वाले हैं जो कम से कम डर के लिए किसी को अंदर तो नहीं घुसने देते हैं, बाहर से आए वालों को क्वारंटाइन करते हैं. बट फियर अबाउट कोरोना इन दिस 3 months वो इतना इमेंस था जो पूछो नहीं. एक स्टोरी कहता हूं कि 92 ईयर ओल्ड माजी कोरोना पॉजिटिव हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में कोविड वार्ड में एडमिट हो गई और ठीक होके बाहर आई. तो वी सेड दैट वी शुड हैव एटलीस्ट जो मीडिया को ये दे कि 92 ईयर ओल्ड की माजी बाहर आई, तो वी आस्क्ड देम कि माजी कैसा रहा, क्या है कोरोना. तो आशीर्वाद कहती है सुबह चाय मिलती थी, नाश्ता मिलता था, फिर क्या कहते हैं दूध मिलता था, 8 बार खाना मिलता था. डू यू नो, फॉर हर कोरोना वॉज नॉट एट ऑल अ थिंग. वो खौफ बिना की विदाउट टेंशन थी. Tejas will agree that people who come under stress, they lose their immunity. Corona is a game of virus and immunity. अगर आप your immunity is high, meaning आप mentally स्वस्थ हैं, आपके पास अगर रोग नहीं है या तो रोग है और वो कंट्रोल्ड है और आप में फियर नहीं है, तो आपकी इम्यूनिटी इज गुड. आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, जो लोगों की एग्जाम आती है और जो लोग ज्यादा डरे हुए रहते हैं, फियर ऑफ एग्जाम, वो लोग बीमार ज्यादा होते हैं, उनको इन्फ्लुएंजा ज्यादा होता है, छींक और ये सब ज्यादा आता है, बिकॉज देयर इम्यूनिटी कम्स डाउन. सेम थिंग इज विथ कोरोना. एंड हाउ डू वी मैनेज कोरोना?
what is the medicine of corona. Every third day, a new drug comes in. Every third day, a new protocol came in. You understand? Somebody somewhere does one thing, and it used to come in our journals. It used to come in our protocols. But there was one thing. Who were strong here did more than what they ate as pills. You know, दवाई से जितना उनका मदद हुआ, उससे ज़्यादा ये स्ट्रेंथ से हुआ. But धीरे धीरे कोरोना का जो फियर है, that fear came out. Now suppose Surat has come in, we as medical fraternity, we have started going to Surat, trying to manage them. अब वो कोरोना से भाग नहीं रहे हैं, है ना? So that has become a big thing. मेरी गुजारिश प्रणव जी से और निर्णय जी से ये रहेगी, मानो के सेकेंड वेव अगर आता है ना सर, आप लोग सिर्फ बगल में पीछे खड़े रहिए, बस, बाकी एवरीथिंग विल गेट मैनेज. बाकी तो जो हम लोगों ने सर मीडिया वालों को, मी एज डायरेक्टर, I used to get more than 500 calls from, they are all my friends, है ना सब. Now खाली पीछे खड़े रहो. Yes, we will manage corona. Yes. Media आपने जैसा कहा Dr. Mishra, media has done a wonderful job. Yes. Obviously, they could do good work because the people on the front line, doctors, paramedics, ने बहुत अच्छे काम किए. मीडिया तो स्टोरीज ढूंढती है, बहुत अच्छी स्टोरीज मिल गई उनको. As well as some controversy. And positive as well as controversy. I used to share this with Nirnay. You know, Nirnay was big support for Medicity. Believe me. Yes. Very big support, you know. Yes. So as Dr. Mishra आप हमें बता रहे थे कि डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, और निर्णय ने भी बताया पीपी सूट में रहने से कितना परेशानी होती है. One of the persons who is participating in this panel, chat में मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ, she is a microbiologist, मैं तो सिर्फ 2 घंटे पहनती हूँ और परेशान हो जाते हैं. और आम लोग तो 2 घंटे भी नहीं, 10 मिनट नाक तक क्लोज भी नहीं कर पाते हैं, तुरंत में वो यहाँ तक ले आते हैं. कुछ लोग तो यहाँ से as if they have to protect their chin, you know, not the mouth and not the nose. That is 200 rupees and now 500 rupees. That is what they are worried. नहीं, वो एक फैक्टर तो है सर, पैसे का फैक्टर तो है, पेनाल्टी का डर तो है, तो वो एक है. बट लेट अस हियर, मैं एक सिर्फ हम लोग जब जर्नलिस्ट हुआ करते थे, हम लोग जब स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन, कई बार हम लोग कहते हैं अ डे इन द लाइफ ऑफ कैंपेन ऑफ अ लीडर. Probably कुछ स्टोरीज मीडिया ने शुरू जरूर किया होगा, somehow I have not seen it, मैं मिस कर गया हो सकता हूँ. A day in the life of a paramedic, a day in the life of a doctor. You know, सुबह उठते हैं, कैसे वो अपने आप को तैयार करते हैं, और रात में जब आते हैं तो what kind of treatment their society people give them and their own family give them, what kind of treatment. Probably एक हम लोग कुछ कर सकते हैं, शायद मीडिया ने किया हो, as I have said, probably media might have done. I have not seen it somehow. But as the takeaway from what Dr. Mishra said, we all of us, we got to have our physical strength तो होना चाहिए. Yes. But you know what is there between the 2 ears, दो कान के बीच जो है, वहाँ पर भी हमें strong होना है. Mental health plays a big role, as Dr. Mishra said. Now let us come to our last panelist on this. Last in the sense, he's a big name. And because of his specialization, उनकी specialization ही ऐसी है, heart को लेकर है. So I would request Dr. Tejas Patel to tell us about all his experience, and of course जो Dr. Mishra ने भी जिसको touch किया, comorbidity. गुजरात में somehow लोगों ने अपने health का बहुत ध्यान नहीं रखा है. So, and because of this comorbidity, the death rate, mortality rate, as medical fraternity calls it, or population studies people call it, काफी high रहा शुरुआत में, अब तो काफी low आ गया है. हम लोग अखबार में देखते रहते हैं. Dr. Tejas Patel, may I request you to share your views before we interact among ourselves, and then we'll take up some questions. There are already a couple of questions. We'll take them up. Participants, please be patient. We will definitely take up your questions with the panelists. Dr. Tejas Patel, sir.
Tejas is muted. You need to unmute him. Yeah, Tejas, can you hear me now? Yes, we can hear you now, Yeah. sir. We can hear you. So I extend my sincere thanks, to the organizers, my friend Nirnay, and all of you for having me over here. अभी मैं तो एक cardiologist हूँ, the question must arise that what am I supposed to do over here during this corona time? अभी कोरोना में as a cardiologist, I had to indulge into this subject क्योंकि 15 से 20% मरीज को कहीं ना कोई फॉर्म में हार्ट इन्वॉल्व होता है. सो कोरोना कैन एफ्लिक्ट हार्ट एज एन ऑर्गन लाइक इट एफ्लिक्ट्स लंग. वो लंग्स को संक्रमित करता है, ब्रेन को संक्रमित करता है, पूरी सर्कुलेशन को संक्रमित कर सकता है. और इसीलिए मैंने मार्च में जब ये कोरोना जस्ट पॉपअप हो रहा था और चाइना में कोरोना के केस होने चालू हुए थे, आई थिंक दिसंबर एंड और फिर जनवरी में छोटे मोटे केस दिखे, तब से मैं लिटरेचर बहुत केयरफुली सर्च कर रहा था. और मार्च में तो काफी लिटरेचर आने लगा एंड रैपिड बेसिस पर न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, लैंसेट वगैरह जो रेप्यूटेड जर्नल है, उसमें कई आर्टिकल्स, रिव्यू आर्टिकल्स, छोटे मोटे स्टडीज, वो मैं बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था. एंड ड्यूरिंग दिस टाइम मैं मेरे जो इंटरनेशनल कलीग्स है, मेरे दोस्त प्रोफेसर्स इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, उन लोगों से भी बात कर रहा था. तो ये मैंने एक कार्डियोलॉजी के सब्जेक्ट की तरह इसको तैयार किया था. और जब ये अप्रैल 2nd वीक में जब मुझे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ा था, तो आई वॉज क्वाइट वेल प्रिपेयर्ड. और मेरे को एक चीज का तो डेफिनेटली पता था कि ये वायरस काफी कंटेजियस है, बहुत ही जल्दी से संक्रमित करता है लोगों को, एक को हुआ तो दूसरों को, मगर उसकी फैटालिटी, जो इन्फेक्शन फैटालिटी रेट, वो कई दूसरे वायरसों से काफी कम है. हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं कि इतनी मृत्यु हुई, वी आर डिस्कसिंग केस फैटालिटी, हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड पेशेंट की मोर्टालिटी. पॉजिटिव केस जो है, जो कि कितने डायग्नोस्ड है, कितने अनडायग्नोज पड़े हुए, उनमें तो फैटालिटी 0.1% के आजू बाजू में है, जो कि स्वाइन फ्लू के नजदीक में है, जो कि कई दूसरे वायरस जैसे इबोला वायरस की 15 से 80%, 90% तक की मोर्टालिटी है. दूसरा जो इनिशियल जो सार्स आया था, उसकी मोर्टालिटी 18 से 20% की थी, उससे कई कम. तो यही चीज मैं उस समय भी 2nd वीक ऑफ अप्रैल से जब मुझे इंटरव्यू का मौका मिला, तो ये चीज मैं लोगों से शेयर कर रहा था. एंड माई इंटेंशन वॉज टू कंफर्ट द पॉपुलेशन, क्योंकि पैनिक बहुत, जैसे विनीत ने बताया, पैनिक बहुत ज्यादा था. और मुझे ये भी लग रहा है कि probably we have overreacted to virus and we have also overreacted to the situation created by this virus. बाकी, और ये इसलिए कि ये वायरस पहले फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को संक्रमित करके, यानी जर्मनी और फ्रांस और इटली और ब्रिटेन और बाद में यूएस में, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में हैवॉक करके यहाँ पे हैवॉक करना चालू किया, इसलिए. बाकी हमने भी कई एपिडेमिक फेस किए हुए इन लास्ट 2 decades ओनली. वेरी बैड एपिडेमिक ऑफ स्वाइन फ्लू, वेरी बैड एपिडेमिक ऑफ डेंगू, वेरी बैड एपिडेमिक ऑफ चिकनगुनिया, उसमें भी फैटालिटीज होती थी, ये सब होता था, मगर लोगों में इतना स्केयर नहीं था. तो ये चीज, और देखो पहले शुरू से मैं यही चीज बोलता आया हूं कि भाई वायरस कहीं जाने वाला नहीं है. Yes. We have to have the sense of coexistence. ये सह अस्तित्व की भावना हमें डेवलप करनी पड़ेगी. Yeah, we are married. बिल्कुल. We are married. There is no divorce with that virus. That's right, there is no divorce with the virus. We better learn to stay together. Bad marriage can have divorce, but this is no. Marriage with virus has no divorce. Yeah. So we learn to live with it and behave as the virus wants us to behave.
एब्सोल्युटली। स्मॉल पॉक्स और पोलियो के अलावा हमने कौन सा वायरस को ऑलमोस्ट इरेडिकेट किया है? कोई नहीं, सब के सब रहे। मगर एक चीज ये भी है, आप हर एक वायरस की एक हिस्ट्री देखो तो उसमें एक चीज ये भी है कि उसका जो फर्स्ट अटैक होता है ये ऐसा ही होता है, वो ज्यादा एग्रेसिव होता है, एंड विद सब्सिक्वेंट अटैक्स एज द म्यूटेशंस हैपन, वायरस का संक्रमण शक्ति कम होता है और धीरे धीरे लोगों का भी इम्यूनिटी बढ़ता है, और इसलिए ये अल्टीमेटली ये सिस्टम में सेट हो जाता है, और साथ में ट्रीटमेंट आती है, वैक्सीन आती है, ये सब होता है। तो वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट कि ऐसा तो चलता रहेगा। और ये क्यों आया वायरस? ये हमारी लोगों की वजह से ही आया है। हमने पशु पक्षियों के लिए जो स्पेस है उसको संक्रमित किया है by creating all these structures and buildings and everything। और हर एक वायरस जो दुनिया में आया है या आइदर एनिमल या बर्ड से आया हुआ है। तो जब ह्यूमन बीइंग की नजदीकियां पशु पक्षी से बहुत होती है करीबी, तो ये वायरस तो ट्रांसमिट होने ही वाला है। तो ये सब चीजें जो कि हमें कई बार सिखाई गई थी, कई बार सिखाई जाती थी, लोगों के माइंड में उतर नहीं रही थी, तो कुदरत ने एक जोर से तमाचा लगाया तो ये हुआ है। और दूसरी एक बात मैं ये भी हर एक बार मैं ये कहता आया हूं कि ये वायरस से डरने का कोई मतलब नहीं है, डरने की जरूरत है ही नहीं। और साथ में वायरस से युद्ध करने की भी जरूरत नहीं है। युद्ध करने के लिए, वॉर के लिए देयर हैज टू बी टू ग्रुप्स, और दोनों ग्रुप के पास अपनी स्ट्रेटेजी होती है। वायरस इज अ डेड स्ट्रक्चर, वायरस डज नॉट हैव एनी स्ट्रेटेजी, वायरस इज इनडिस्क्रिमिनेटिव, वो बीच में जो भी आता है निर्जीव सजीव उसको एफ्लिक्ट करने की कोशिश करता है। तो इसके साथ लड़ाई करने का तो मतलब ही नहीं है ना। आपको इससे बच के दूर रहते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी है, और जब तक उसकी स्पेसिफिक दवाई नहीं आ जाए तब तक तो यही करना है। और दूसरी बात है कि अभी हमारे पास जो भी आर्मामेंटेरियम ने दवाई है वो वायरस के कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करने के लिए, वायरस को स्पेसिफिकली ट्रीट करने के लिए वायरिसिडल इसके अंदर अपने पास कोई नहीं है। जैसे टॉसिलिजुमेब है तो वो हमें ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म के सामने लड़ने के लिए, रेमडेसिविर है वायरल लोड थोड़ा कम करने के लिए। तो ये सब चीजें है। तो जो एग्जिस्टिंग अवेलेबल मेडिसिन है उसमें से अभी जब टेस्टिंग ज्यादा होने लगे हैं तो उसके लिए भी मेरा तो ये टेक हमेशा रहा है, और मैं बहुत फर्मली मानता हूं कि व्हाई आर वी अफ्रेड ऑफ नंबर ऑफ केसेस, पॉजिटिव केसेस? इट मे बी 5, इट मे बी 5 lakhs, और इट मे बी 5 crore। हाउ डज इट मैटर टू अस? आप 125 करोड़ की बस्ती में हर एक का जो टेस्ट करने जाएंगे तो इट विल बी पॉजिटिव टेस्ट केसेस विल बी इन क्रोर्स। सो व्हाई आर वी वरीड? हमारे घर में एक व्यक्ति को फ्लू होता है, इन्फ्लुएंजा, तो हम देखते हैं कि इसकी इट इज अ कंटेजियस वायरस, तो हर एक को होने वाला है कहीं ना कोई फॉर्म में सीवियर होगा या माइल्ड होगा। तो व्हाई आर वी वरीड अबाउट नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस? वी शुड ओनली बी वरीड अबाउट treating patients, not Yes. allowing the patient to become serious, और जो कितने mortality हम कम कर सकते हैं उसके ऊपर ही हमें ध्यान देना चाहिए। ये पॉजिटिव, आर वी इन कंपटीशन विद सम अदर स्टेट कि भाई हमारा स्टेट का नंबर दूसरे स्टेट से कम होना चाहिए, और इज दिस कंट्री इन कंपटीशन विद सम अदर कंट्रीज कि भाई ये कंट्री में कम केसेस हुए दूसरे से, तो हमें ऐसा करने की जरूरत कहाँ है हमें? तो मैं ये बहुत फर्मली मानता हूं कि we should concentrate only on identifying the patients in early stage and treating them, or 80 to 85% of the cases can be home isolated or home quarantine। उनके लिए अस्पताल के बेड की भी जरूरत नहीं है। only moderate or severely affected cases are to be admitted just to address the complications on time so that we can prevent lot of lives। अभी ये टेस्टिंग ज्यादा होने से गुजरात में, मैं हमेशा अपने जो इन्फेक्शन, मेरा जो दोस्त है इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट अतुल से बात करता रहता हूँ, तो मोर्टालिटी डेफिनेटली कम हो रही है, क्योंकि यू हैव सोर थ्रोट एंड फीवर, यू गेट योरसेल्फ टेस्टेड, पता चलता है कोविड है या नॉन कोविड है। तो कोविड और नॉन कोविड में ट्रीटमेंट में कितना फर्क है कि स्टीरॉइड एंड टोसिलिजुमेब आर कोविड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट and they cannot be given in any other viral infection, they are contraindicated।
तो इतना तो क्लैरिटी अपने पास आ गया है, तो ये क्लैरिटी से हम मान लो कि भाई ये आरटीपीसीआर टेस्ट का सेंसिटिविटी कम है, 65% सेंसिटिव है, वी आर मिसिंग सम केसेस, मगर जो पॉजिटिव पकड़े गए हैं उसको तो हम सही तरह से ट्रीट कर सकते हैं ना। तो मुझे ये लग रहा है कि ये एक तो निर्णय और प्रणय भी दोनों को, आपको मैं बोलता हूं कि आप भी यही चीज मीडिया में भी प्रोपेगेट करो ज्यादा से ज्यादा, कि केसेस की इतने पॉजिटिव यहाँ आए, इतने पॉजिटिव यहाँ आए, अभी सब डिस्कस करना ही बंद कर दो। क्योंकि जो लोगों की साइकी है इतनी बिगड़ गई है कि एवरी डे आई कम अक्रॉस पेशेंट्स एट माय प्लेस इन एपेक्स के आते हैं और बार बार सैनिटाइजर लगाते हैं, ये करते हैं, जैसे कि बॉडी पे स्प्रे करते हैं। ये सब चीजों की कहाँ जरूरत है? यू हैव टू रेगुलरली, पीरियोडिकली, यू नो, डू हैंड सैनिटाइजेशन, यू हैव टू वेयर मास्क एंड यू हैव टू कीप फिजिकल डिस्टेंस सेफ 6 फीट और मोर। और आज आप पॉजिटिव है और मैं आपके साथ आके 2 मिनट बात कर लिया, तो क्या am I vulnerable? No, because I have spent time only 2 minutes with you. क्लोज कांटेक्ट के डेफिनेशन में 10 मिनट तक बहुत नजदीकी से बात कर रहे हैं, आपने मास्क नहीं पहना है, सामने वाले ने मास्क नहीं पहना है, तो इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं। तो व्हाई आर वी गेटिंग पैनिक अबाउट इट? और ये धीरे धीरे करके सब कंट्री के ट्रेंड जो मैंने जो स्टडी किए, और जो मोस्ट बैडली एफ्लिक्टेड सिटीज इंक्लूडिंग न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और इटली के अंदर लोम्बार्डी और मिलान और ये सब जगह, और ब्रिटेन में लंदन और ये सब जगह, आप हर एक कंट्री के ट्रेंड में एक चीज देख सकते हैं कि जो सिटीज सबसे हेवीली एफ्लिक्टेड होते हैं, दे आर द फर्स्ट टू कम आउट। अल्टीमेटली हर्ड इम्यूनिटी, आज अपने ही अहमदाबाद शहर के वॉल एरिया में कितने केस निकलते हैं, इसका मतलब है कि वहां हर्ड इम्यूनिटी ऑलरेडी सेट हो गई है। हर्ड इम्यूनिटी मीन्स कि मोर देन 60% ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट एरिया आर आइदर क्लिनिकली और सब क्लिनिकली ऑलरेडी हैव बीन एफ्लिक्टेड। तो बात खत्म। अभी यहां से निकल के दूसरी जगह गया, तीसरी जगह गया। अच्छी बात है कि धीरे 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 करके वायरस का विरुलेंस भी कम होता जा रहा है। तो वी हैव टू बी पॉजिटिव एंड वी शुड जस्ट कंटिन्यू। मुझे एक चीज का बहुत ही डर था कि जब अनलॉक 1 आया तब मुझे लगा कि लोग इतने घबराए हुए हैं कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, अनलॉक करेंगे सरकार तो भी। मगर मैं तो देख रहा हूं पहले दिन से कॉन्फिडेंस के हर एक लोग जैसे नॉर्मल चल रहा है उस तरह से निकल रहे हैं। कॉन्फिडेंस हैज कन्वर्टेड इनटू ओवर कॉन्फिडेंस, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग। वी हैव टू बी कॉन्फिडेंट, बट you know there is no point in becoming overconfident unnecessarily। community transmission का spread बहुत ज्यादा करने का जो है उसी लेवल पे जितना अटक सके उतना अटका के उसे खत्म करना चाहिए। और मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ। दूसरे कंट्री के ट्रेंड मैंने देखे, उसके हिसाब से जब व्हेन आई ट्राइड टू फिट our country's trend in those trends, I have my presumption nobody can accurately forecast anything because the virus is completely new for the world. Everybody is a student as far as this virus is concerned. The best of the universities and the best of the setups are also struggling to set their protocols right. तो मगर ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सितंबर एंड तक और बाय द टाइम वी आर अप्रोचिंग दिवाली, काफी हद तक मुझे लगता है कि नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चला जाने वाला है कोरोना, बट पीपल विल आल्सो गेट यूज्ड टू इट एंड वायरस डेफिनेटली वीक हो जाएगा। बिकॉज आई एम ए वेरी पॉजिटिव पर्सन, आई पर्सनली स्ट्रांगली फील कि ये होना चाहिए जो दूसरे कंट्री में यही हुआ है। थैंक यू डॉक्टर तेजस पटेल, वेरी नाइसली सेड। स्मार्ट होना है, स्ट्रीट स्मार्ट होना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। एंड द ट्रिक, एज द टू एक्सपर्ट्स हम लोगों को बताए, ट्रिक है सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट एंड मोर, mask up to nose, not the chin. These are the tricks. Some very simple things for this complicated stuff that we are going to understand. We have a couple of questions before I hand it over to Mr. Ankush to put the questions before the panelists. One quick response I would like, especially from Dr. Lakshmi Bhavani, because आपको इस स्केल बहुत काम करते हैं कम्युनिकेशन स्केल में, can you give us a quick communication
communication strategy when we talk about fighting something which as a There's a problem in your audio. So quick response from Dr. Lakshmi Bhavani. She is not able to hear me. Are you able to hear me? Now we are able to hear you, but the earlier we couldn't hear you. Now we can't hear you. You are muted. Pradeep sir, you have to repeat the question. I have to repeat it. I wanted Dr. Lakshmi Bhavani to respond to what should be done for this taboo communication, because we have two communication experts here. Quick response before we take up a couple of questions that we have. Thank you so much. And in fact, after hearing Dr. Tejas Patel, I am just going one step behind. One is he talked very well about the treatment. I'm going even beyond that for the prevention of the issue. But I think to prevent this issue, simple thing is we have to have the right behaviors. We were talking about the social distancing and wearing the mask to protect, to sanitize ourselves, and maintaining that distance. So these are the things. But we have also heard about the kind of the fears, taboos, and the discrimination, stigma, and all these things. I think the behavior change is required at every level of whatever we are facing. So for this, one thing I feel is we need to communicate in the local language, the way what the people can understand, simple language, and we need to have empathy to the people who are infected or affected with the COVID virus. And then we need to have the respect and build the confidence and trust. For this, we have to reinforce the message again and again in the simple language and in every possible platform. And also the people who have already undergone, like the Mr. Pranav, and everyone who are we have the COVID warriors and we have the COVID victims, and we have to use them to communicate the messages, and we have to use the COVID victims who are there from the same communities, if we can use them, and the people who are having the popularity or the public recognition, if we can use them to convey the simple messages, and that will really help to overcome this stigma. That's what my Thank you, Dr. Bhavani. We are running short of time, so we must get on to the questions now. Mr. Ankush Singh, can you take over now? Can you put the questions to the panelists? Yeah, thank you. Thank you, Dr. Malik. Thank you. तो बेसिकली 4 क्वेश्चन है अभी तक, तो मैं 2-2 करके लेता हूँ और मैं किसी भी पैनलिस्ट को बोलता हूँ कि कोई भी आप क्वेश्चन ले सकते हैं. एक तो पहला क्वेश्चन आया है हिमाली से कि विच इज द बेस्ट मेथड टू गेट कोविड टेस्ट और द RT-PCR. आई थिंक ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लोग इसके बारे में बहुत सोच भी रहे हैं कि कौन सा टेस्ट कराना बेटर है. और एक क्वेश्चन और हिमाली का ये है कि हाउ मच वायरल लोड डज द रैपिड टेस्ट चेक. ये 2 क्वेश्चन हम लेते हैं, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन कम्युनिकेशन के ऊपर है, उसको हम साथ में ले सकते हैं. See, viral load, for checking viral load, actually there are no specific means available at the moment, because then you have to take a blood sample to check the viral load. If you take a nasal swab and you decide the viral load, it's going to be fallacious. So at the moment, there are some issues about deciding viral load in every patient. But holistically, if you see, around 85 or 84% of the patients out of 100 positive cases, 84 have mild viral load, 6 or 7 have moderate viral load, and another 7 or 8 will have severe viral load. Mild viral load means one person can afflict 0.8%. It's simply like an influenza virus, 1 to 1. Severe viral load
का मतलब ये है कि एक आदमी 6.25 आदमी को संक्रमित कर सकता है, मगर ऐसे नंबर 100 में से 7 या 8 ही होंगे, बाकी के मोस्ट ऑफ देम विल बी माइल्ड. दिस इज व्हाट आई नो अबाउट इट. Thank you, Dr. Tejas Patel. What about the second question? Second question was, which is the best method to get COVID test, a rapid test or the RT-PCR? RT-PCR at the moment is the best available test, although the sensitivity of the test is 65%. Sensitivity is 65% means, it will miss about 35%, 35 out of 100 positive cases. Oh. Yeah. But still, that is the best available test at the moment. Mr. Singh, दो और questions हैं. दो और क्वेश्चन है, बेसिकली कम्युनिकेशन से रिलेटेड है कि एक तो है कि जब से ये मतलब कि ये आया है मतलब कोविड रिलेटेड, तो बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन है. जैसे कि शुरू में आया था कि ये शायद किसी ने बनाया है वायरस, फिर से ये भी आया कि ये वायरस शायद गर्मी से खत्म हो जाएगा, और फिर बहुत सारे मतलब कि एक्सपर्ट्स के अंदर भी बहुत सारे एक्सपर्ट फैटर्निटी में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे. तो ऐसे सिचुएशन में जब मीडिया रिपोर्ट करे तो वो कैसे करे, और मतलब कि उनका क्या ये स्टैंड होना चाहिए. और दूसरा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन विंग कमांडर साहब का है, पुनीत चड्डा जी ज्वाइन किए हैं. और दूसरा है कृणाल का है क्वेश्चन है, और वो पूछना चाह रहे थे कि अगर हमें अब जैसे कि पता चला कि अब नेक्स्ट हो सकता है कि रूरल एरिया में बहुत ज्यादा कोविड फैलेगा, तो वहां पे स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए एज अ कम्युनिकेटर हम लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरह के कदम अभी से हमें उठानी चाहिए, हम मिल के क्या कर सकते हैं. तो अंकुश जी, सेकंड क्वेश्चन के लिए तो आई थिंक आप भी बहुत अच्छा हमें गाइडेंस दे सकते हैं लोगों को. You are a communication specialist. आप बताएं क्या किया जा सकता है, आप ही बताएं. एंड सेकेंड क्वेश्चन के लिए तो मुझे लगता है कि देखिए अभी जो रूरल एरिया में चूंकि बहुत सारे मतलब कि कम्युनिकेशन रिलेटेड चैलेंजेस रहेंगी, क्योंकि एक मीडियम से नहीं होगा, एक मीडियम के थ्रू हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो अलग अलग मीडियम को हम कैसे यूज करें. तो सबका अपना अपना रीच है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है. तो उस तरह से हम कैसे अपने स्ट्रेंथ को यूज करेंगे और कैसे रूरल एरिया तक पहुंचेंगे, वो हम लोगों को देखना बहुत जरूरी है. और उसके लिए बहुत जरूरी है कि डिफरेंट जैसे कि गवर्नमेंट्स के भी वेरियस डिपार्टमेंट हैं जो कि कम्युनिकेशन कर रहे हैं. हमारे कम्युनिकेशन एक चैनल के थ्रू कैसे हम कर सकते हैं, और मतलब कि उसको बार बार फ्रीक्वेंटली वहां पे पहुंचे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा. तो ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी रहेगा. और अगर डॉक्टर प्रदीप अगर आप ऐड करना चाहें, कोई और ऐड करना चाहें तो. Can I add one point? Yes, ma'am, please. See, when it comes to the rural areas, one positive point is the rural communities are more homogeneous. Relatively, they are more homogeneous than the urban communities. So there is an advantage that the discrimination and stigma will be little less. They will be treated as the family members. So that is one thing. And the second thing is we already have got some experience from the urban areas. So what kind of stigma and discrimination we can have? So that experience is there. So based on that, we can even proactively start some kind of giving them right information and giving them, breaking the myths and not to believe the fake news, and also how we can what are the minimum protocols to prevent it, or if the person is coming out as positive, then what kind of precautions we can take. So that could be well explained, and we need to be ready with this community. Already we are having the communication materials in the local language for the rural areas. So I think this will help. And as for the other question that Mr. Ankush Singh आपने बताया हम लोगों को, Pradeep sir, Nirnay bhai want to add on this. Yes, मैं उनके पास ही आ रहा था, because this second question specially it is for the media people. So either Nirnay bhai or Pranab bhai should be able to answer this question. What should be the media stand, especially with difference of opinion amongst the experts in medical fraternity? Dr. Chadha, Wing Commander Chadha, conspiracy theories तो बहुत सारे आ गए.
हम लोग उसकी चर्चा करते हैं. Let us hear from May I? let us hear from Nirnay bhai or Tejas want to say something. Yeah. पहले. पटेल साहब को कुछ Yeah. कहना है, डॉक्टर तेजस yes पटेल. please. Yeah, Dr. I Tejas just Patel. I just want to clarify about virus and its existence in heat and sunlight, right? Department of Homeland Security US, which is supposed to be an epic department to deal with this type of calamities in United States, they have come out with this data, and they have done a joint work with John Hopkins University that this virus does not survive in temperature more than 30 or 32 degree, okay, for more than 5 minutes. This was their study. Secondly, in humidity, this virus will have a short life, because and humidity will also help in restriction in the spread of this virus. And the reason they gave was, during humidity, the air becomes heavy. And when somebody sneezes or coughs, the droplet transmission becomes slower. So it can't traverse for a long distance or several feet. So these were the explanations given by them. And it was a very authentic report, and it was presented in presence of President and Vice President of United States in an official meeting. Mm-hmm. But Dr. Tejas Patel, we have also heard later studies and all, temperature really doesn't matter much, because this virus is spreading even in hotter climate where temperature has been 45 degrees. Even in the virus has already spreaded. Let me tell you. Yeah. So abhi iska ye har ek jagah pe virus hai. Magar when the data is coming out of John Hopkins, we have to believe, because this is a new virus, and they are very avid researchers. So I think we should believe them. Very true. We have to respect Johns Hopkins. Nirnay bhai, you wanted to add something? देखिए, पहले तो मैं आपको जो रूरल कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, रूरल सोसाइटी को कैसे एड्रेस करना है, मेरा पिछले 4 महीने का अनुभव ये है, और जो मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ और जो इंसिडेंसेस हमारे सामने आए हैं, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बिहेव कर रहे हैं पिछले 4 महीनों में. आपने देखा होगा माइग्रेंट लेबर्स के इशू के टाइम पे भी, जब ये माइग्रेंट लेबर्स अपने घर पहुँचे, अपने गाँव में पहुँचे, तो वहाँ उनको जिस तरह से मैनेज किया गया है, प्रोबेबली अर्बन पॉपुलेशन से ज़्यादा अच्छी तरह से उन्होंने बिहेव किया है. और इसलिए मुझे लगता है उस इशू पे बहुत ज़्यादा अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ट्रांसमिट हो चुकी है. और जैसे जैसे इस वायरस का स्प्रेड वहाँ जाएगा, मुझे लगता है कि उसमें उनके अंदर तब तक और ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी होगी. और जाहिर सी बात है, हमें अपने एफर्ट्स बंद नहीं करने. और रही बात मीडिया की कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स और इसको किस तरह से टैकल करे, तो उसके लिए एक छोटा सा खाली मीडिया को उपाय करना है कि उसे सोशल मीडिया नहीं बनना है. अगर वो इतना कर लेगा तो आई थिंक ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी. अनवेरिफाइड इन्फॉर्मेशन अगर हम भी प्रोपोगेट करना शुरू कर देंगे तो फिर कहीं उसका अंत नहीं होगा. We need to ask some difficult question. जैसे कई बार हमारे वहां पर भी होता है, तो अहमदाबाद में बहुत ज्यादा फैला था और खबरें कहीं बाहर से आ रही थी, तब मुझे एक क्वेश्चन पूछने पड़ते थे कि जब जिसको आप एक्सपर्ट कह के कोट कर रहे हो, वो आदमी कौन है, कितने केसेस उसने ट्रीट किए हैं, ये तो मुझे बताओ. कैसे, हाउ कैन यू टेल हिम एक्सपर्ट? क्योंकि अगर उसका ओपिनियन मैं छाप दूंगा अहमदाबाद में, 10 लाख घरों में वो पहुंचेगा और लोगों के पास मिसकम्युनिकेशन चला जाएगा. उसने अभी कोरोना का एक भी पेशेंट ट्रीट नहीं किया है, ही नो नथिंग अबाउट कोरोना. कहीं पे उन्होंने कुछ पढ़ा होगा. अच्छा, दूसरा हम ये भी पूछते हैं कि अच्छा उसका स्टडी है तो कहाँ से हुआ? जैसे अभी तेजस भाई ने कहा कि हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का है, तो कहाँ से उन्होंने पढ़ा कुछ भी? तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे कई बार पूछने पड़ते थे, क्योंकि पैनिक सभी जगह था. कई सारे छोटे सेंटर से स्टोरीज आ जाती थी कि एक्सपर्ट ये बता रहे हैं. मैंने बोला हर डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं होता, आप पहले उसको ब्रेक लगाओ. और दूसरा, सोशल मीडिया से इतना सारा प्रभावित होकर कुछ भी आप चला रहे हो, तो बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन वो मुझे लेने पड़े कि नहीं, स्टोरी ब्रेक रोक लो, ये ऐसी स्टोरी नहीं जा सकती है अपने वहां पे.
और हुआ भी ऐसे कि कई सारे लोग बने बैठे एक्सपर्ट बताए जा रहे हैं कुछ भी और फिर चल जा तो ये भी एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा कि हम किसको एक्सपर्ट कह रहे हैं। और जैसा निर्णय ने कहा कि सोशल मीडिया से प्लीज जैसे मतलब दूर हो, वो बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन फैला देते हैं और वो भयानक तरीके से फैल जाता है। ये एक दूसरा menace दूसरा एक क्या और है, दूसरा एक प्रॉब्लम अभी यहाँ पे ये चल है कि वायरस बिल्कुल नया है, जी अभी किसी को कोई ज्यादा ज्ञान है नहीं, जो भी लिमिटेड जो एक्सपीरियंस और जो स्टडीज है उसके ऊपर से हर वक्त कोई ना कोई नई हाइपोथेसिस आती है, उसके ऊपर से कोई नई ट्रीटमेंट आती है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आज ये बोल रहे हैं, कल डॉक्टर ये बोल रहा है, परसों मगर when nobody knows anything about the virus has come, is new to the world, it has come for the first time in the world, so this is bound to happen। जैसे कि स्वाइन फ्लू में जब तक टेमी फ्लू आया नहीं तब तक कितना कहर था, द मोमेंट वी हैड ट्रीटमेंट फॉर इट एवरीथिंग सेटल डाउन। तो यही चीज इसमें बनने वाला है। अभी आज तक शुरू में कोविड का जो न्यूमोनिया था वो ARDS होकर ट्रीट होता था, बाद में पता चला कि साइटोकाइन स्टॉर्म होता है और बॉडी के अंदर क्लॉट्स हो जाते हैं, हर एक आर्टरी बंद हो जाती है, फेफड़े की आर्टरी बंद हो जाती है। तो ये सब चीजें जैसे आप स्टडी करते हैं, डेथ होते हैं, डेथ की ऑटोप्सी होती है, उसके ऊपर से होता है। तो चेंजेस ये इसमें अभी भी बहुत रैपिड आएंगे टिल व्हेन द थिंग्स आर स्टैंडर्डाइज। सो एज यू राइटली टोल्ड प्रणय भाई कि वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल प्रोपेगेटिंग इंफॉर्मेशन टू द सोसाइटी। बट आज मैं कुछ बोल रहा हूं और कल मैं कुछ और बोलूं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि भाई चेंज हुआ है, इसका पैटर्न चेंज हुआ है और इसके हिसाब से नई ट्रीटमेंट आई है, ये भी हो सकता है। साइंस तो डॉक्टर साइंस तो यही है ना, एविडेंस के ऊपर बात करती है। नए एविडेंस आएंगे, नए स्टेटमेंट्स आएंगे, नई बातें हमें जानने को मिलेगी। इट इज ऑल एविडेंस बेस्ड। सो समय के साथ नए एविडेंस। प्रदीप भाई सिचुएशन जो है वो बहुत डायनेमिक है और इतनी डायनेमिक है कि यहाँ रोज कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन रिवील हो रही है। इसलिए एज अ मीडिया, एज अ कम्युनिकेटर, लाइक हमें फिल्टर्स अपने आप यूज करने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं, बिना कॉन्सिक्वेंस के, बिना उसके कॉन्सिक्वेंस को समझे हम कोई भी चीज प्रोपोगेट नहीं कर सकते हैं। मीडिया को बहुत रिस्पॉन्सिबली इस सिचुएशन में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में कम से कम कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रख के खबर को पब्लिश करना चाहिए। मेयर वो खबर है सिर्फ इसलिए पब्लिश नहीं करना है। आपको ये देखना है कि आज जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें उस खबर का इफेक्ट क्या आएगा, उसको किस तरह से रिएक्ट करेंगे लोग। आपने देखा होगा मई के शुरुआत में अचानक अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि डबलिंग रेट अगर इसी तरह से रहा तो अप्रैल में, आई बिलीव अप्रैल के एंड वीक में, कि अगर इसी तरह का डबलिंग रेट रहा तो 31 मई तक अहमदाबाद में 8 लाख पेशेंट हो जाएंगे। और एक घंटे बाद फिर उन्हें वो स्टेटमेंट उन्होंने बदला, लेकिन उस एक घंटे में मुझे मालूम है कि अहमदाबाद में क्या हैवॉक क्रिएट हो गया था, लोग किस तरह से बिहेव कर रहे थे। तो हमें एज अ मीडिया बहुत सोच समझ के गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन बिठा करके, एक्सपर्ट्स के साथ प्रॉपर एक कोऑर्डिनेशन बिठा करके और हर सिचुएशन का कॉन्सिक्वेंस एनालाइज करते हुए तभी खबर को आगे बढ़ाना चाहिए। और खास तौर पे आज जिस तरह का माहौल बना हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो लोगों के अंदर, उस तरह की चीजें ज्यादा प्रोपोगेट होनी चाहिए, वरना लोगों में डिप्रेशन आ जाएगा। Can I add one point? Yes. Say particularly since it is evolving from time to time, I think media really has a greater responsibility. And even they have to rely on particular sources, authentic sources, which give the data or information that needs to be addressed. And suppose Mr. Nirnay has mentioned about the Ahmedabad Municipal Commissioner. So even if it is like he is an authority for Ahmedabad Municipal Corporation, but still the kind of news which creates the fears in people, those kinds of news immediately it should not be brought to the public. So we need to have some filters and wait for some time and get an authentic news, and then we have to go ahead. Thank you. Yes. Well said, ma'am. Well taken point. Mr. Ankush Singh, any other question there? Pradeep sir, Pradeep ji, question. I see a question from in the chat box. Yes, there's a question from Facebook. So we are taking one question from Facebook, and this is about how we can do the confidence building measures. By Sujit Kumar on Facebook, Sandeep Kumar on Facebook.
confidence building. Media, I think, has a big role to play. ये इस तरह की जो एक्सरसाइज है, आई थिंक ये सबसे बड़ा एफर्ट है टुवर्ड्स बिल्डिंग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, क्योंकि सोशल मीडिया से ही सारी खबरों में मैंने देखा है दूषण आता है। तो आपको इस तरह के मीडियम्स को यूज करके लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उन तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचानी होगी, और सबसे बड़ी बात है कि आपको उन्हें हौसला देना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन से हम डील कर रहे हैं जहां बड़े बड़े मेडिकल एक्सपर्ट जो सालों से दशकों से रिसर्च कर रहे हैं, दशकों से इस समस्या को डील कर रहे हैं, अचानक जब वो खुद परप्लेक्स्ड हैं, जब वो खुद कंफ्यूज हैं, जब वो खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या नए चेंजेस आ रहे हैं। हर रोज हम देखते हैं कोई एक नई रिसर्च सामने आके पड़ी होती है। ऐसी सिचुएशन में आपको लोगों को जो टेस्टेड मेजर्स हैं, एटलीस्ट जिस पे आम सहमति बनी हुई है, उसके लिए लोगों को कन्विंस करना है और लोगों को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। हम जितना प्रिपेयर करेंगे, जितनी ज़्यादा सही इंफॉर्मेशन उनमें स्प्रेड करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर तरीका होगा, आई बिलीव, रादर कि सेंसेशनलाइज करना चीज़ों को। Manish, any other question from Facebook? I think it is still getting late. एक question है, quick question from Sailesh Goyal, I see. This is aimed at, question is pointed to Dr. Patel. Tejas sir, how effective is corona infection position indication through CT scan of lungs? Yeah, it is a very important investigation. मगर आज मुझे फीवर आया तो आज का आज वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए. There is a definite period. You take advice of an infectious disease specialist, but in CT scan, if it is showing signs of corona affliction, it is quite specific, almost 97% specific, they say. So it is one of the important tool. अरे CT scan तो sophisticated investigation, बेसिक इन्वेस्टिगेशन अपना जो ब्लड काउंट है उसमें भी आप लिम्फोसाइट्स को फॉलो करो, और फीवर वाला मरीज है और लिम्फोसाइट ड्रॉप हो रहा है और सिंगल डिजिट में गया, that is also quite specific for this. And there are some other blood investigations which are to be followed. So RT-PCR is not the only thing, there are other things in the armamentarium for the diagnosis of this disease. And in the background of present pandemic, anybody who is having fever and sore throat must, keep one thing in mind, that one has to rule out corona infection, because this is a pandemic, is an ongoing pandemic. Now, thank you, Dr. Patel. We are running short of time. We have already exceeded our time. I'm very sorry to interrupt. We'll take one last question, if there is any. We have Mr. Ankur Singh. We have already short our time limit, but let us have one question. Sir, maybe sir, somebody was making a point. I interrupted in between. एक क्वेश्चन है कि अभी मतलब कि समवन कैन आंसर कि ये क्या पैंडेमिक का मतलब कि पीक कब तक आएगा, कब तक मतलब कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये पीक है या नहीं? और दूसरा बड़ा मतलब कि इसी के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसको जरा आप साथ में भी कर सकते हैं, कि अगर वायरस आप बता रहे हैं कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे मतलब कि डाइज, तो ह्यूमन बॉडी जो कि 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, वहां वो कैसे सरवाइव कर पा रहा है? देखो, दिस इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं, ये सनलाइट होना चाहिए. सनलाइट का जो अल्ट्रावायलेट रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज खत्म करता है. यस, है ना, अल्ट्रावायलेट. अच्छा, ये अल्कोहल का भी यही एक इश्यू था कि भाई अल्कोहल जो हैंड सैनिटाइजर में यूज होता है तो वायरस को खत्म करता है, तो जो लोग अल्कोहल पीते हैं तो वायरस, पर उसके लिए 65% कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल का चाहिए. जो आपका विस्की या कोई भी ड्रिंक होगा उसमें 40 और 42 और 43% होता है, तो वो नहीं चल सकता है. Thank you for demystifying some very well-known myths. Thank you, Dr. Tejas Patel and Dr. Pradeep ji, more amount of alcohol has been consumed through skin absorption rather than by per oral consumption. That has become a big problem, medical problem, that is going to come up. Yes, because you find people either worried, so every 10 minutes they are coming and they are sanitizing their hand, and slowly they will become addict and they will keep on sanitizing.
Oh, That is oh. going to be Ye- one more problem post-corona thing. Yes, निर्णय भाई, प्रणव भाई, आपकी responsibility ये बात लोगों तक पहुंचाने की. 100%. washing hand with soap is more effective than sanitizing your hand with alcohol. Thank Only you. thing is washing is little more unpractical thing rather than having those spray of alcohol on your hand. So, Mr. Ankush Singh, can we call it a day? I know there might be a few more questions, but there's something called time limit, which we have already exceeded. Yes, Dr. Pradeep, we can now call it a day. मुझे We लगता have है. to. Yeah, Yes. we are getting questions, but Sorry. Sir, we can finish, sir. Time is over. Yes. Yeah. So that's what I was saying. There is a time limit. We have already exceeded it. Thank you, dear panelists, Dr. Tejas Patel, Dr. Vineet Mishra, Dr. Lakshmi Bhavani, Nirnay Bhai and Pranav Bhai. Thank you very much for giving your valuable time and sharing your experience and expertise. And then thank you very much all the participants for making this livelier, raising questions, which I'm sure wherever we are in our own small circles and the larger circle, if we have, wherever we are, we can share this information with all. Dr. Wing Commander Chadha has something to say about sharing the email IDs. Definitely, I'll ask my colleague, Mr. Kumar Manish, to share this with all the panelists and the participants. We have your details, we have your coordinates. We'll definitely share this. Mr. Manish, please take note of this. Thank you very much for sparing so much of your time and sharing your expertise and views. Thank you, participants. Thank you, Thank you. panelists, once again.